सारे जय मसीह दी। प्रभु आप सब नूं बड़ी आशीष बरकत देवे। मैं पास्टर पतरस मसीह यशु दरबार चर्च का पास्टर। अज सन ऑफ गॉड चैनल जिहड़ा भाई हरदेव मट्टू जी ने शुरू किया, उस दे वसीले नाल तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। और भाई हरदेव जी ने कोशिश की आ कि किस तरह मैं यस्सु मसीह नूं ग्रहण किया, किस तरह यस्सु कोल आया, कि सारियां गल्लां नूं तुहाडे नाल शेयर करा, क्योंकि यही गल्लां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਆਇਜ਼ਕ ਮਸੀਹ ਮੱਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁਲਹਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਆਦਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਟਾਊਨ 'ਚ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਵਾਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਅਣਹੋਣਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ
मैं उन्होंने पुछदा, उन्होंने एक अख ते बहुत बड़ा काला तैल निकलिया, बिल्कुल मैं जागदा गल्लां करदा ते मैं पुछदा आ कि बीबी ये की आ? वो कहंदी कि ये वो पाप आ जिहड़े आदम तो शुरू हो, जद कि वो खुदा नूं जाणदे भी नहीं ते साडे कहंदी सारियां दे आ इदां दे निशान। ते मैं कहा मैं इन्हां लई वास्ते कुछ नहीं कर सकदा। वो कहंदी हाँ पर तू परमेश्वर दा वचन तां सुणा सकदा ना। इन्नी गल होई, वो अलोप हो गया, मैं कल्ले दा कल्ला उस जगह ते बैठा। मैं बड़ा अपसैट होया, मैं अपने पास्टर जी नाल गल कीती। उन्होंने मैनूं दस्सिया कि पास्टर जी ने कहंदा कि ये परमेश्वर दी बुलावट सी, वो चाहुंदा आ कि तू पापां दी माफी दा प्रचार करे, तू एक प्रचारक बने। मैं कहा हाँ मैं तैयार आ। और थोड़े चिर फिर इदां ही होई, फिर तू कौन ते मैं कौन। फिर असीं एक मीटिंग दे उत्ते गए, मेरे नाल एक सिख नौजवान सीगा ते असीं 4 जाने टैक्सी दे विच, ते एक पास्टर साहब, पास्टर स्टीवन जॉर्ज अमेरिका तो आए सी इंग्लैंड च। और जदों मैं अंदर गया चर्च दे ते उन्होंने प्रचार रोकिया, कहंदे परमेश्वर ने जिहनूं चुनिया आ उस चर्च विच आ गया ते मैं चाहुंदा कि उहदे लई प्रार्थना करिए। ते मैं सोचा कोई होर होना, असीं लेट भी गए सीगे। मैं चुप करके जाके बैठ गया एक सीट दे उत्ते ते उन्होंने मैंने मेरा नाम भी लिया। मैं कहा नाम भी बथेरे इक्को जिहे हो सकते आ। फिर उन्होंने मेरे कपड़ियां का रंग दस्सिया। फिर वो भैन जिहड़ी मेरे नाल बैठी सी कहंदी भाजी तुहाडा ही नाम लैंदे आ, तुसीं हुण कल ही होर किन्ना क परमेश्वर नूं परताउणा। उन्होंने मेरे वास्ते प्रार्थना की। प्रार्थना तो बाद उन्होंने मैनूं कहा कि तुसीं परमेश्वर दा काम करोगे। और मैं सोचदा सीगा कि सारे सारे रब दे दास इदां ही कहंदे आ कि तैनूं भी चुनिया, तैनूं भी चुनिया, तैनूं भी चुनिया। इन्हां ने भी कहता, पर मैं वो भुल गया सी कि परमेश्वर ने मेरे नाल खुद भी गल्लां कीतियां होईयां आ अपनी सेवा दे लई। और फिर मेरी जिहड़ी जिंदगी सीगी उदां दे यारां दोस्तां दे नाल मिल गई, दुनियावी जिंदगी बन गई। और मैं उस तो शर्माउंदा नहीं, क्योंकि उस सारी जिंदगी नूं यस्सू ने जिहड़ा सी माफ कीता मैनूं, उन्हां सारियां खतावां नूं, उन्हां सारियां गलतियां नूं। और दुनियावी दुनियादारी दे विच मैं काफ़ी ज़्यादा पै गया। पर समा आया ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੋੜ, 4 ਜੋੜ, 6 ਜੋੜ ਔਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ और मैं तुरना भी मेरे तो मुश्किल हो गया। थोड़ा जिहा भार भी, किलो खंड भार चकना भी मुश्किल हो गया। और उस समय के दरम्यान मैं प्रार्थना की ते मैं जदों कमरे दे विच प्रार्थना करदा सीगा अपने बैडरूम दे विच, ते एक तेज रोशनी जिद्दां छतरी हुंदी है इस तरह मेरे आले दुआले आके ठहर गई। ते उहदे विच एक आवाज़ आई कि जिस दिन तू पहले दिन प्रार्थना की सी 2 साल पहले जदों तू बीमारी शुरू हुई सी, मैं तेनों उदण ही चंगा करता सी। क्या बड़ी कमाल दी गल है। खुदा कहंदा मैं चंगा करता सीगा, मैं तो तुर नहीं हो रहा, ते इह किद्दां हो सकदी आ। मैनूं मैं कहा परमेश्वर मैं जानदा आ कि तुसीं मेरे नाल गल कर रहे आ, मैं ये भी जानदा कि तुसीं मैनूं शिफा देती, पर उस शिफा नूं मैं किसी कारण रिसीव नहीं कर सकिया। पर अज मैं तोबा करदा आ ते अज मैं उस शिफा जिहड़ी तुसीं मैनूं दित्ती सी मैं हुणे ही चंगा होना चाहुंदा आ। ते उत्थे भी यही गल सी कि तू मेरी सेवा करेगा। परमेश्वर ने कहा हाँ प्रभु। मैं कहा मैं तेरी हुण सेवा करांगा। और जिस तरह आपां कोई कच दा बर्तन, गिलास वगैरह कच दा पक्की जमीन ते सिੱਟੀਏ ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज़ आउंदी ਜਦੋਂ टुटदा, इस तरह मेरियां हड्डियां चों कड़कड़ दी आवाज़ आई ते मैं एकदम ठीक हो गया। ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
और मैं उन्हां नालों भी मोहरे। और उस दिन तो लैके अज तक भी डॉक्टर दसदे आ नुक्सा, पर मैं बड़ा सोहना तुरदा फिरदा चलदा और सब कुछ करदा आ। ये खुदा दा फजल आ। और फिर मैं हुण डिसाइड किया होया कि मैं परमेश्वर दे मगर चलांगा, मैं यसू मसीह दे मगर चलांगा। और बहुत सारियां खतावां कीतियां, बहुत सारियां गलतियां कीतियां। एक किताब भी लिखी सी मैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं अपनियां गलतियां का जिक्र किया सी। पर खुदावंद दा शुक्र है कि परमेश्वर ने अपने दासां दा तो मैनू बाइबल स्टडी दवाई। और मैं सोचता सीगा कि मैं बाइबल स्टडी नहीं कर सकता, पर मैं इस माध्यम के राही सन ऑफ गॉड चैनल के राही दसना चाहना और धन्यवाद करना चाहना ब्रदर जगदीश उप्पल जी, जिन्हों ने बहुत समा मैनू अपने घर में बुला के बाइबल स्टडी करवाई। रोज़ साडी बाइबल स्टडी चलती सी, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना सी मैनू सेवा लई तैयार करन दी। और उन्होंने 10-12 साल मैनू बाइबल सिखाई। और अज भी मैं ये नहीं कहता कि मैनू बहुत ज़्यादा कलाम की नॉलेज आ, अज भी मैं सिखदा ही हाँ। जदों किसी दास तो कुछ नवां सीखण नूं मिलदा ते मैं हमेशा एक बच्चे की तरह सीखण लई तैयार रहना है। और मेरे भैणों ते भरावो, मैं तुहानूं दसना चाहना, जे परमेश्वर मेरियां सारियां खतावां ते गलतियां नूं माफ करके अपनी सेवा लई चुन सकदा ते तुहाडीआं भी गलतियां नूं माफ कर सकदा। तुहाडा जीवन अज किद्दां दा आ मैनूं नहीं पता, तुहाडे जीवन विच की शैतान ने कीता आ, की कर रिहा आ, मैं नहीं जानदा। पर परमेश्वर तुहानूं सारियां गलतियां नूं माफ करन दी ताकत रखदा आ। और अज ਉਹ तुहानूं सारियां गलतियां माफ करन लई तैयार आ। किते ਇਹ ना होवे कि देर हो जाए। अज परमेश्वर चाहता है कि तुसी सारियां गलतियां तो माफी मंग लो, क्योंकि खुदा दे कलाम च पहला यूहन्ना दे विच लिखिया होया 7 पर जे असीं चानण विच चलीए जिवें ਉਹ ਚਾਨਣ है, ते साडी आपो विच संगत है अते ਉਹਦੇ पुत्र यसू दा लहू सानू सारे पापां तो शुद्ध करदा है। भाई जे असीं आखीए भाई असीं पापी नहीं हाँ, तां अपने आप नूं धोखा दिंदे हाँ, सच्चाई साडे विच है नहीं। जे असीं अपने पापां दा इकरार करिए ते ਉਹ वफादार ते धर्मी है, भाई साडे पापां नूं माफ करे अते सानू सारे कुधर्म तो शुद्ध करे। जे असीं कहिए कि असीं पापी नहीं हैगे ते असीं किसे नूं नहीं, असीं अपने आप नूं बाइबल दसदी धोखा दिंदे आ। क्योंकि मैं हिंदू परिवार दे विचों आया सी और सानू बचपन तो यही सिखाया जाता सीगा कि किस तरह तुसीं मड़ियां मसीतां नूं मूर्तियां नूं धूप धकाउणे आ, किस तरह तुसीं चिराग बालने, किस तरह तुसीं प्रसाद चढ़ाउणे आ, किस तरह तुसीं उन्हां दी पूजा करनी आ। पर यह किसी ने नहीं सी दस्सिया कि तुसीं आदम दी वजह दे नाल पापी भी हो ते तुहानूं अपने पापां दी माफी मंगण दी भी जरूरत आ। क्यों नहीं दस्सिया गया? मैं अज सोचदा एक रब दा दास हुंदे होए, क्योंकि इस करके नहीं दस्सिया गया उन्हां दे कोल पापां नूं माफ करन दी ताकत नहीं हैगी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਠਾਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ, शैतान तुहाडे जीवन में एक बहुत बड़ा धोखे की गल करेगा। वो कहेगा नहीं तू तो आ कीता है, तू तो आ कीता है, तू तो बहुत बुरा आ, तू तो बहुत बुराई की है, तैनू माफ नहीं हो सकता। ये शैतान का धोखा आ और तुसीं उहदे विच ना फसियो। तुहाडा जीवन चाहे कैसा भी होवे, बाइबल दसदी आ तेरे पाप चाहे किरमच जहे भी क्यों ना हो, मैं उन्हां नूं बर्फ वर्गे चिट्टे कर देवां, भावें मजीठ जहे क्यों ना होण, मैं उन्हां नूं उन वर्गे कर देवांगा। और बाइबल दसदी आ कि मैं तुहाडे पापां नूं फेर याद नहीं करांगा। एक यस्सू ही है जिहड़ा साडे पापां नूं कदे याद नहीं करदा। अगर असीं अपना जीवन बुराई विचों कढ के बाइबल दे विच चलाउणा आ ते सानूं तौबा दी जरूरत आ। तौबा दा मतलब आ अगे असीं अपनी मर्जी नाल एक पासे नूं चलदे सी, हुण असीं यू टर्न लै के परमेश्वर दे नाल चलना शुरू कर देना, बाइबल नूं पढ़ना शुरू कर देना। जिउंदा परमेश्वर यस्सू मसीह ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ।
जिस तरह साडे पे दादे परदादे दबे गए उसी तरह वो दबे रहे, कुछ डिफरेंट नहीं। पर यस्सु मसीह साडे लिए आया कुआरी मरियम तो, साडे लिए उन्हें दुख झले, साडे लिए मारिया गया, साडे लिए कबरां विच रखिया गया और साडे लिए जी उठिया ताकि सानू जिंदगी दे सके। जिंदगी यस्सु दे कोल आ, पापां दी माफी यस्सु दे कोल आ। फतेहबंद जीवन अगर पाउणा आ फिर यस्सु नूं कबूल करना ही पैना, और यस्सु नूं कबूल करांगे हर दुख हर कष्ट यस्सु मसीह तुहाडा दूर करेगा। और तुहानूं इत्थे बरकत नहीं बल्कि हमेशा दे जीवन का भी यस्सु मसीह वादा करता है। सो मेरे भैणों ते भरावो, मैं तुहानूं हौसला देना चाहुंदा कि अगर तुसीं किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह पाप, किसी भी तरह की बदी दे विच हैगे आ ते अज भी तुहाडे कोल एक चांस हैगा आ। यस्सु मसीह दा आउणा बहुत करीब आ। अज भी चांस आ कि तुसीं मुड़ सकदे हो, अज भी चांस आ तुसीं तौबा कर सकदे हो, अज भी अपना जीवन यस्सु नाल फिर से तुसीं जोड़ सकदे हो। और जदों तुहाडा जीवन यस्सु नाल जुड़ जाएगा ना तो फिर यस्सु तुहानूं बचाएगा ही नहीं बल्कि स्वर्ग भी ले जाएगा, तुहानूं हमेशा दे जीवन दे वारस बना देगा, तुहानूं फतेहबंद देवेगा। जिहड़े काम तुहाडे जीवन च कदे नहीं होए अगर तौबा करोगे वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तुहाडीआं बीमारियां खत्म कर देगा यस्सु, तुहाडे दुखां नूं तुहाडे तों दूर कर देगा यस्सु, तुहाडी गरीबी चों यस्सु मसीह कढ देगा तुहानूं, और तुहाडे रुके हुए काम परमेश्वर खोल देगा। और परमेश्वर हमेशा तुहाडे नाल रहण दा वादा करदा और यस्सु तुहाडे नाल इकमक होके रहेगा। पर शर्त आ अज तुसीं तौबा कर लो। आइए इस दे नाल असीं छोटी जी प्रार्थना करदे हां। अगर तुसीं तौबा दे लई तैयार हो तुसीं मेरे मगर पहला शब्द दोहरा सकदे हो। ਜਿਹੜੇ भी इस चैनल के माध्यम राही तुहाडे नज़दीक कोई पास्टर नहीं है तुसीं मेरे नाल इह शब्द दोहरा सकदे हो, जां तुसीं कोई भी तुहाडे शहर तुहाडे ग्रां तुहाडे मुहल्ले दे विच पास्टर है तुसीं उहदे कोल जा सकदे आ, किसी भी विश्वासी दे कोल जाके तुसीं ये प्रार्थना करवा सकदे हो। जे कोई नहीं है नेड़े तां तुसीं मेरे मगर ये प्रार्थना कर सकदे हो। प्यारे यीशु, तेरा बड़ा ही धन्नवाद करदे आ कि तू साडे पाप उठा लै, साडीआं बदियां उठा लईआं, साडे लई मारिया गया, साडे लई दुख चले, साडे लई कबर विच रखिया गया, साडे लई तीसरे दिन जी उठिया, तू अज भी जिंदा है। परमेश्वर, मैं अपने पापां दा इकरार करदा हां, मैं अपने पापां दा इकरार करदी हां कि प्रभु असीं पापी हां क्योंकि आदम वाला खून साडे अंदर आउंदा आ। पर अज मैं यीशु नां दे विच अपने सारे पापां नूं मनदा हां जां मनदी हां ते उन्हां सारे पापां नूं छड्डदी हां ते यीशु तू अपना रहम मेरे उत्ते कर दे। यीशु तू अपना मैनू बेटा अपनी बेटी बना ला और मैं फिर पापां विच नहीं जावांगा बल्कि तेरे नाल चलांगा, तेरे कलाम दीआं गल्लां ते चलांगा। परमेश्वर तेरा बड़ा ही शुक्रिया अदा करदे हां। प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद करदे हां कि तू जिंदा आ और जिंदगी दित्ती आ। परमेश्वर मैनू नवी सृष्टि बना दे। तेरा शुक्रिया अदा करदे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। खुदा तेनू सारिआं नूं बड़ी बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह दी।